Hello students. So now again we come to the part of noun. I have created this video for you because the single video might get too long. So I have created another part for the rest of the things for of noun. And so let's begin. We have done the concept of noun in the previous video. Now let's see the remaining portion of noun. See, we are going to discuss kinds of noun now, right? We have cleared the concept of noun. What is noun? All right. Now we will see how many kinds of nouns are there. See, we have 5 kinds of noun. So first one is the proper noun, common noun, collective noun, material noun, and the last one is abstract noun, right? We will discuss all these now type of nouns one by one. All right, so just write this thing in your fair notebook. In this way also you can write. If you have any problem that you cannot draw a flow chart like this, you can simply write the heading kind of noun, and then write a arrow here, make a arrow, and then you can write in your fair notebook there are 5 kinds of noun, and then according to the serial number 1, 2, 3, 4 and 5 you can write this like this: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं. अगेन आप फिर काइंड्स ऑफ, अगर आप नहीं कर सकते हैं या आपको नहीं मन है ऐसे फ्लो चार्ट बनाने का, तो आप सिंपली काइंड्स ऑफ नाउन हेडिंग लिखकर उसके बाद आप लिख सकते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, एंड उसके बाद आप नंबर वाइज नंबरिंग मेंशन करके नंबरिंग के आगे आप ऐसे लिख सकते हैं 5 काइंड्स ऑफ नाउन. ऑलराइट, so let's begin with their concept and their meaning, right? Now let's see what's the meaning of proper noun first. See, a word which shows the name of a person, name of a particular or specific person, place, animal or a thing is called proper noun. See, it means एक नेम, एक ऐसा वर्ड जिससे आपको पता लगता है किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, या किसी पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, या पर्टिकुलर एनिमल का नेम है, या पर्टिकुलर किसी थिंग, किसी चीज का नेम है. ठीक है, तो वो वर्ड क्या होगा? प्रॉपर नाउन, राइट? अ वर्ड विच शोज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल or a thing is called a proper noun, right? Then example we say Aarti. It's a name of a person, right? So it is a proper noun. It's a name of a girl, a person, particular person, right? Then India. India is the name of a particular city, particular country, particular place. It's a name of a particular place, specific place, India, country, right? Goa. Goa is a place, particular place, name of a particular place, city, right? Kitty is a particular name of a pet, right? Like a cat. We generally put the name of a cat as kitty, pet cat, right? तो kitty रखते हैं हम mostly. तो kitty name of an animal, right? And so these are the proper noun, right? And in your A notebook, write down note also. In this way, proper noun always begin with a capital letter. ठीक है, proper noun हमेशा आपके capital letter के साथ start होते हैं. Example, करिश्मा is doing her work. करिश्मा अपना काम कर रही है, right? इसमें मुझे बताओ जल्दी से कि क्या होगा proper noun. I know you get it, right? So Karishma is a name of a particular person, a girl name, right? And here K is capital, right? Is doing her work. Now next, I will go to Delhi. I will go to Delhi. The naming word, the name of the particular place is Delhi, and here you can see that the letter D is capital, correct? So write it down in your fair notebooks. Alright. So beside these things, we say name of days, name of months, name of mountains, right? Name of the things. So these things are also covered under proper noun, like name of universities, name of colleges, name of schools, particularly name of the things, right? So they are also comes under proper noun. Like example we say Mount Everest,
is the highest peak of the world. Correct? So here you can see Mount Everest is E capital and M is capital over here, and it's the name of the mountain, right? Particularly name of a mountain. So it is a proper noun because it's a name of a particular mountain, right? Particular name. So this is also a proper noun. Right? Hopefully you must have cleared the the concept of proper noun. Just correct it down. Mount Everest is the highest mountain peak, right? Mount Everest is the highest mountain peak of the world, right? It's the highest peak mountain peak है वर्ल्ड की. तो नेम हमारा पर्टिकुलर जो माउंटेन का पर्टिकुलर नेम है वो माउंट एवरेस्ट है. तो इट शोज प्रॉपर नाउन. इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. करेक्ट? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज कॉमन नाउन. व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन नाउन? कॉमन नाउन, कॉमन मीन्स जनरल. कॉमन जो हम नॉर्मली कॉमनली किसी को बोलते हैं, राइट? कॉमन वर्ड यूज होते हैं जैसे कि सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स, राइट? बहुत सारे नेम्स होते हैं सब्जियों के, जैसे टमाटो, पोटैटो, लेडी फिंगर, राइट? बट जब हम बात करते हैं कॉमन, तो क्या बोलते हैं कॉमनली? मम्मी के साथ मार्केट जाते हैं तो क्या बोलते हैं आप? मम्मी सब्जी लेने चलते हैं या वेजिटेबल्स, राइट? तो कॉमनली हम क्या बोलते हैं एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ग्रुप को, राइट? लाइक वेजिटेबल्स, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जी हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके हम नेम ना लेके, पर्टिकुलरली नेम ना लेके हमने क्या किया? कॉमन एक नेम दे दिया, वेजिटेबल्स, राइट? जैसे फ्रूट्स हो गया, वो भी पर्टिकुलर एक ग्रुप हो गया फ्रूट्स का, जैसे बनाना, मैंगो, एप्पल. ये तो नहीं कहा कि मम्मी ये वाला फ्रूट लेने चलते हैं, ये वाला फ्रूट लेने चलते हैं, राइट? तो आपने पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ फ्रूट्स को, सारे टाइप ऑफ फ्रूट्स को क्या कहा है? फ्रूट्स इन कॉमन, राइट? तो इसलिए वो क्या हो गए? फ्रूट्स क्या हो गया? कॉमन नाउन, राइट? वेजिटेबल्स क्या हो गया? कॉमन नाउन. करेक्ट? अभी जैसे हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा था कि पर्टिकुलरली किसी चीज को नेम देना, किसी चीज का या किसी प्लेस का, पर्सन का नेम है तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन. पर्टिकुलरली पर्सन का स्पेसिफिक नेम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन है. कॉमनली जब हम सारी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक नेम रख देते हैं, राइट? कॉमन, जैसे कॉमन ग्रुप बोलते हैं, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन, राइट? लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. कॉमन नाउन इज यूज्ड टू रेफर to a class of people, place, thing, animal, etc. in general, right? Example, there have come players from many countries. यहाँ बहुत सारे मतलब बहुत सारी कंट्रीज से प्लेयर्स आए हैं. क्या मैंने ये बोला है कि क्रिकेट प्लेयर्स आए हैं? क्या मैंने बोला है कि फुटबॉल प्लेयर्स हैं? क्या मैंने बोला है बैडमिंटन प्लेयर्स हैं? मैंने पर्टिकुलरली ये नहीं बताया कि कौन से स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, राइट? कौन सी फील्ड से प्लेयर्स हैं. बस ये बोला है कॉमनली कि प्लेयर्स आए हैं, राइट? तो कॉमन हमने नेम दे दिया, तो ये क्या हो गया आपका? प्लेयर्स, कॉमन नाउन. करेक्ट? और जब मैं बोलती हूँ बैडमिंटन प्लेयर्स, तो वो क्या हो गया आपका? पर्टिकुलरली नेम दे दिया हमने प्लेयर्स कौन सी ग्रुप से हैं, तो वो क्या हो गए? प्रॉपर नाउन, राइट? सो आई थिंक द डिफरेंस इज वेरी क्लियर टू यू बिटवीन द प्रॉपर नाउन एंड द कॉमन नाउन. करेक्ट? Write it down in your fair notebook. Now come to the third kind of collective noun. See, what's the meaning of collective noun? Noun that name a group or a class of similar things. Just focus on the similar things or persons taken together and spoken of as one whole are called collective noun. See, what do you mean by collective noun is that जब हम एक साथ इकट्ठे होने की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर क्लास को कलेक्टिवली एक साथ बोलते हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. अब आप कहोगे मैम कॉमन नाउन में भी आपने कुछ ऐसा ही बताया था. सी, कॉमन नाउन में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कॉमन नाउन में जब हम जनरल किसी पर्टिकुलर क्लास को जो नेम दिया जाता है, करेक्ट? पर्टिकुलरली हम पर्टिकुलर नेम ना लेके हम जनरली जो बोलते हैं कॉमनली, ठीक है, तो वो होता है कॉमन नाउन. हम लेकिन जब बात करते हैं ऐसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उनको इकट्ठा लेके बात करते हैं, इकट्ठे हम कलेक्टिवली बोलते हैं, तो वो आता है आपका कलेक्टिव नाउन. जैसे बंच, बहुत सारी चीजें, बंच ऑफ कीज, बहुत सारी आपकी की हैं, चाबियां हैं, राइट?
तो बंच कलेक्टिवली इकट्ठा करके हमने बात की है नाउन की, तो वो बंच क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, राइट। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अभी हमने बात की थी प्लेयर्स। प्लेयर्स एक कॉमन वर्ड है, वो कॉमन नाउन, सिर्फ प्लेयर्स की कॉमन हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कौन सी फील्ड से है ये नहीं पता, बट हम बात कर रहे हैं टीम ऑफ प्लेयर्स। टीम है, जब इकट्ठे कलेक्ट हो गया ना, कलेक्टिवली हमने बात की ना, टीम पूरी टीम है, राइट। तो जब कलेक्टिवली बात कर रहे हैं तो ये कलेक्टिव नाउन, राइट। अ क्रू ऑफ सेलर्स, क्रू ऑफ सेलर्स मींस, व्हाट डू यू मीन बाय सेलर्स? सेलर्स मींस जो शिप चलाते हैं या शिप पे वर्क करते हैं, राइट। तो जब उनकी बात करते हैं इकट्ठे, बहुत सारे क्रू ऑफ सेलर्स, मतलब पूरा एक ग्रुप है पीपल का, वो सेलर्स का, राइट। तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, जब ग्रुप, हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात करते हैं, करेक्ट। सो दैट इज द थिंग वी से इन अ कलेक्टिव वे, इट्स अ collective noun, correct. Hopefully the today's concepts are clear to you. If you have any queries, you can ask your queries in the below comment section. Also press like button and share the video and subscribe the channel for the latest updates. And for today this is enough, and we will be discussing the remaining portion of noun later on. So for today it's done, and stay tuned, stay safe, be connected, and just do your studies well. Take care. Bye bye.